Assalamualaikum, students of class 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Have a nice day. How are you all, students? Students, hopefully you all will be fine. Okay, students. As you know, students, that we were studying the chapter Maryam's letter. We have read the story of Maryam's letter, and in the previous lecture we have done is 2 question answer from your exercise. Okay. I hopefully you have done the words meaning from the book. Okay, I have given you the list of words meanings to do in the neat copies, and after that I have provided you 2 question answer in the previous lecture, students. Hopefully you have done it in the neat copies, but if any student has missed that lecture or those question answers, so for your convenience I have again attached this question number 1 and question number 2 in your in this lecture 2. Okay, in this today we will do question number 3 and 4, but before question number 3 and 4 I have showed question number 1 and question number 2 also in this lecture. Okay, and then after that we will do question number 3 and 4 in detail. Okay, now what was the question number 1, student? Why did someone call out the name Shikari Ali? Someone made fun, that's why he called out Shikari Ali, as Ali was a bewildered look person. He had been a clever shikari. As his skill increased, so did his love for the hunt. He was a skillful hunter of partridges and other birds. Okay, so it was the answer of question number 1, and I have explained this answer in the previous lecture. So please, if your lecture has been if you didn't do the question number 1 and 2, so you can do it. Please do it. Okay, now let's move towards the question number 2. Now question number 2 is like, what was Ali's obsession? Hunting was Ali's obsession. Not a day passed without Ali setting out with his gun. His sharp eyes spotted the hare crouching in the yellow-brown scrub even if the dogs failed to see it. Okay, it was the question number 2. Please do it in the neat copy. Okay, now we will move towards the question number 3. Okay, in today's lecture we will do the question number 3, student. Please, question number 3 is like I have skipped one question from your book, so please leave that. So it will be a question number 3, student. What made Ali lose his passion for the sport? Question number 3 is that what made Ali lose his passion for the sport? Okay, now the answer is that okay, now answer of the question number 3, student, is just like that. Ali's only child, Maryam, had grown up into a young woman, and she got married a soldier and went off to live with him and his regiment in Punjab. यानी अली की जो एक ही चाइल्ड थी, एक ही बच्ची थी, मरियम जिसका नाम था, वो बड़ी हो गई जल्दी, और उसकी जो है एक सोल्जर से शादी हो गई. उसने सोल्जर से शादी कर ली और वो उसके साथ पंजाब, उसकी रेजिमेंट के साथ, उसके ग्रुप के साथ वहाँ पे पंजाब रहने चली गई. ठीक है, फॉर द Okay, for the last 5 years, Ali had received no news of his daughter. पिछले 5 साल से अली को अपनी बेटी की कोई न्यूज़ नहीं मिली, कोई खैर खबर नहीं मिली उसको. ठीक है, ही वॉज टू मच वरिड अबाउट हिज डॉटर दैट ही लॉस्ट हिज पैशन फॉर द स्पोर्ट. ठीक है, वो अपनी बेटी के लिए इतना परेशान था, इस कदर परेशान था, ज़ाहिर उसकी इकलौती बेटी थी और वो उसके लिए इस कदर परेशान था कि उसको उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली कि वो कैसी है, कहाँ है, कैसी है, किधर है. ठीक है ना, तो इसके लिए इतना परेशान था कि उसकी परेशानी में उसने अपना जो हंटिंग का शौक़ था, जो स्पोर्ट विल थी उसकी हंटिंग के लिए, वो सब कुछ उसमें ख़त्म हो गई. उसका सारा शौक़ ख़त्म हो गया. वो बहुत परेशान रहने लगा उसके लिए, और वो बहुत ज़्यादा वरिड था अपनी बेटी के लिए, इसलिए उसका पूरा स्पोर्ट्स का शौक़, पैशन, सब कुछ जो है उसके लिए वो ख़त्म हो गया. ओके ना, अगेन स्टूडेंट्स, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, व्हाट मेड अली लूज हिज पैशन फॉर द स्पोर्ट? अलीज ओनली चाइल्ड मरियम हैड ग्रोन अप इनटू अ यंग वुमन एंड शी गॉट मैरिड अ सोल्जर एंड वेंट off to live with him and his regiment in Punjab. For the last 5 years, Ali had received no news of his daughter. He was too much worried about his daughter that he lost his passion for the sport. Okay, so now it is the answer, student. Please do it in the neat copies and be careful about writing and spellings. Okay. Okay, student, from book I have skipped क्वेश्चन नंबर 4. बुक का क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया मैंने, क्वेश्चन 5 करवाया आपको, तो क्योंकि दोनों तकरीबन सेम ही क्वेश्चन थे, तो मैंने पोस्ट मास्टर के बारे में ही थे, तो क्वेश्चन 4 एक छोड़ा है और उसकी जगह क्वेश्चन 5 करवाया है. लेकिन अब ये आपका कॉपी का क्वेश्चन नंबर 4 ही बनेगा. ठीक है, नहीं आप क्वेश्चन 3 कर चुके हो ना कॉपी में, तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा. ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट थ्योरीज डिड द पोस्ट मास्टर हैव अबाउट अली?
व्हाट थ्योरीज डिड पोस्ट मास्टर हैव अबाउट अली, यानी जो पोस्ट मास्टर था उसके अली के बारे में क्या थ्योरीज थी, क्या ख्यालात थे वगैरह, ठीक है। अच्छा, नाउ द आंसर इज दैट एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग न्यू पोस्ट मास्टर used to laugh over Ali's talk and called him lunacy, यानी जो भी पोस्ट ऑफिस में लोग थे, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस में जो भी लोग थे, ठीक है, और जो न्यू पोस्ट मास्टर इंक्लूडिंग न्यू पोस्ट मास्टर, उनमें न्यू पोस्ट मास्टर भी शामिल था, वो सब जो है अली के ऊपर हंसा करते थे, उसकी बातों पे हंसा करते थे और उसके पागलपन पे उसे और इसके सारे अमल को, उसकी बातों को, उसके सारे एक्शन को जो है पागलपन कहा करते थे, ठीक है। यानी एक तरह से वो सब उसको पागल कहा करते थे, उसके सारे एक्शन को पागलपन कहा करते थे। ये सब उसकी जो तड़प थी अपनी बेटी के लिए और जो परेशान था अपनी बेटी के लिए, वो उन सब की नज़र में उन सब मजाक था और उसको पागलपन कहा करते थे, ठीक है। द पोस्ट मास्टर सेड हिम मैड, पोस्ट मास्टर उसको मैड कहा करता था, पागल कहा करता था। उसकी फीलिंग्स की वो लोग नहीं समझते थे, उसकी फीलिंग्स को या नहीं समझना चाह रहे थे और जो है उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे थे वो, ठीक है, और उसको जो है पोस्ट मास्टर जो है उसको पागल कहा करता था, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बैड बिहेवियर शो करते थे वो लोग। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4 अगेन। व्हाट थ्योरीज डिड द पोस्ट मास्टर हैव अबाउट अली? एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग न्यू पोस्ट मास्टर यूज्ड टू लव over Ali's talk and called him lunacy. Hopefully you have done the words meaning students, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको बहुत पहले दिए थे, आपने इसके मरियम्स लेटर के वर्ड्स मीनिंग कर लिए होंगे नीट कॉपीज़ में, और प्लीज़ ये क्वेश्चन आंसर भी कर लें और अपने वर्क को अप टू डेट रखें, ठीक है। द टाइम विल बी गिवन टू यू फॉर चेकिंग, तो अपनी कॉपीज चेकिंग के लिए आप सबमिट करवाना शुरू करेंगे और आपकी कॉपी चेकिंग का वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्ली चेक होंगी, तो प्लीज़ कीप योर वर्क अप टू डेट एंड डोंट कीप इन पेंडिंग, ओके। सो एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग देन यू कैन आस्क मी स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे रही हूँ मैं, आप ऐसा ऐसा करते जाइए कॉपी में ताकि आपका वर्क पेंडिंग में ना हो, एंड बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।